Shabazz, and welcome to our fourth workshop, Simple Linear Regression of Machine Learning Zero to Hero. So today workshop is going to be amazing. It's simple, but it's like a hello world of machine learning. And by the way, the entire machine learning program is itself a hello world when it comes to the entire measure of AI, which is currently happening throughout the globe. But when it comes to machine learning, so today's workshop is just like hello world of machine learning. It's a small demonstration regarding machine learning, that how it we train the model, how we predict the model, and how we visualize the data before and after training the model. So okay, I will keep balance in Urdu and English, because some people, I did survey last night and there were about 44% ratio of English and 56% ratio of Urdu. So that is why मुझे दोनों में बराबर रखना है, और because I don't want to lose both attendees from both majors, because there are up to 200 who want to be learned in English, and there are more than nearly 300 who want to learn in English. I'm telling about those who did survey, not the rest of ones. All right, so yesterday we did data visualization, and before yesterday we did data pre-processing. Today we are not going to do data pre-processing in our regression model, because our data set is already pre-processed, and I don't want to make this workshop overwhelmed for you, ताकि आप हजम कर सकें. आपके लिए सब इतना ही होना चाहिए ताकि आप हजम कर लें, because if it exceeds your limit you gonna vomit out. And yeah, it's natural, it happens with me as well a lot of time. It took me so much time when I started learning machine learning without guideline. But there were people, especially for Ali from Gorizab, who helped me out to learn machine learning. All right, so just sharing out my screen. Wait a second. Yes, so I think it's being shared. Okay, that's what I see here. And just moving back to our notebook. Okay, all right. So first of all, this notebook has been uploaded to my GitHub account. My team will soon share this URL at your WhatsApp groups and as well, and at Discord server as well. So you can play along with the code as well. And what about dataset? Dataset is also uploaded in my repository, and you can download from my GitHub as well, and you can download from Kaggle website, kaggle.com. And I hope that Kaggle, one of my team members already shared the URL of that dataset. That dataset is actually representing that real world data of some volunteer-based people, their brain size versus their brain weight versus their head size. Usually ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका जितना बड़ा हेड हो उतना ही बड़ा आपका ब्रेन साइज हो, ब्रेन का वेट हो. So to observe this problem, to observe this analysis, to analyze this scenario that क्या वाकई ऐसा हो सकता है, तो उसका डेटा जमा किया गया. There were the team who explored this scenario, who made this data set, and now we are going to perform regression on the data set. Okay, first, before going towards regression, I want to let you know what is correlation. Correlation is simple, just like a relationship between two variables. For example, it is a graph, and there is an x-axis plus there is a y-axis. So x-axis and y-axis are both dependent on each other. Like if there is a value on x, so y is depending on as x, because y is a function of that x equation. Every line we draw on the graph has some particular equation. Always remember that. Otherwise, because if it has equation, it means it has some particular correlation. Correlation is simply as relationship. Correlation is, अगर हम layman terms में बात करें तो correlation कुछ भी नहीं है, सब कोई relationship है. Now it can be, the correlation can be in like linear relationship format, and its affinity can be in polynomial, like it is have squared x and multiple things.
So I don't want to make it overwhelming for you. Correlation is just relationship, okay? Now, if there is no correlation, there cannot be any regression. Always remember that. And how can we know if there is any correlation or not? We are going to see that later, okay? Okay, what is regression? Regression is just a statistical method. Assume that we are having some sort of data which has some linear or polynomial relationship or linear or non-linear relationship, but there is a relationship, okay? If it's having relationship, so it means that we can predict the future circumstances based on our data. For example, finance, investing, and there are many other disciplines as well. For example, my company earns this amount in 2005 and that amount in 2010. So what amount I'm gonna earn in 2015 and 2020, I can predict by using simple regression technique. Even if it's linear or non-linear, it doesn't bother me, but I can predict based on my data. Okay, going further, yeah, just zooming out it. Today, there are multiple types of regression. There is simple linear regression, there is multiple linear regression, and there are some more major types of regression which deals in non-linear disciplines. So, what is simple linear regression? This is the most simple regression we're going to study. This is our mathematical equation, the from the model itself used for drawing this line. As you can see, this is a regression equation. We have some particular data. These scatter plots represent the data points which we are having in a data set. But what does red line is representing? Red line is representing the equation of a regression. अब इस तरह आप समझ सकते हैं इसको कि हमारे पास बहुत सारा डाटा था और वो थोड़ा ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन हम डाटा को देख के मालूम कर सकते हैं कि जो भी रिलेशनशिप बन रहा है इट्स लीनियर। तो जब हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे, वो एक रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ कर देगा। अब जब रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करेगा, तो जब भी हम किसी पॉइंट पे एक्स प्रिडिक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं 30 के ऊपर, तो वो सीधा सीधा जाएगा ऊपर। जिस जगह पे वो यहाँ पे आके और पॉइंट करेगा कि इक्वेशन के ऊपर, तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू होगी वो उसको प्रिडिक्शन देगा। नाउ देयर कैन बी सम एरर एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 को पॉइंट कर रहा हूँ और यहाँ पे वो गया, अब 40 के ऊपर कुछ वैल्यूज ऐसी भी है जो आई गेस 11 और 12 को डिनोट कर रही है, और कुछ वैल्यूज ऐसी भी है 40 के ऊपर जो 14 और 15 को डिनोट कर रही है। सो देयर कैन बी सम एरर एज वेल बिकॉज हर डेटा रिग्रेशन के अंदर हमें यूजुअली प्री प्रोसेसिंग की सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम प्री प्रोसेसिंग की बात करें तो हाँ, हो सकता है कि हमें डेटा सेट के अंदर से नल वैल्यूज या एन वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज जो हमें रिमूव करनी पड़ जाए, या डाटा बहुत ज़्यादा रॉ फॉर्मेट में हो उसको हमें क्लीन करना पड़ जाए, तो उस सिनेरियो में तो डाटा प्री प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बट वी नेवर नीड टू स्टैंडर्डाइज और सेंट्रलाइज अ डाटा फॉर रिग्रेशन, बिकॉज इसका मॉडल बहुत फास्ट होता है, एक सिंपल इक्वेशन बेस्ड होती है। क्लासिफिकेशन के अंदर या दूसरे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मॉडल गुजर रहा होता है। दैट इज व्हाई वी नीड स्टैंडर्डाइजेशन and centralization in those scenarios, but we don't need to deal with those scaling here. Okay, just diving into some basic mathematical intuition. If you are not able to understand this mathematical intuition, so don't worry, because this happens with everyone and this is natural. Math is the core of machine learning, but if you try to spend your small amount of brain in this, you can understand it very purely, because code इतना मुश्किल नहीं है, code is not such hard. Everything is based on the backend services math is doing. All right, so let me zoom in. Okay, this is our model equation. Now what does it do? If you remember this equation, this is our slope equation. This equation represents the slope. What is it? Like y is equal to m x plus c. M is the coefficient of slope and c is constant. C can be something greater or lesser, which makes the residual between the values. What is residual? I will tell you that later. And m is the linear coefficient or non-linear coefficient, any magnitude-based coefficient
which is being with the x, and it can make any type of equation as well. All right. So just leave that equation simply as here, because if you it gonna make some hard, because I did survey last night and some people said that I'm teaching a little bit hard and very fast. So all right. So here is an obvious fact that y is a dependent variable and x is an independent variable. आप किसी भी x axis पे कहीं पे भी point कर सकते हैं, but y is depending on the x because y x का function है. All right. All right. What is residual? रेजिडुअल का सिंपल फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू. हाउ अगर हम लेमन थोड़ा जाएं तो इफ यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ रिग्रेशन लाइन, this is a regression line, and this is what was our real data. Black points are representing a real data, the data set we were using, but this is a regression line. Now if we predict like on 10, so it won't give me such accurate result. There is some kind of difference between the predicted value and actual value. So that difference, the difference between estimated value and actual value, is known as residual. There are more major names of those as well, but residual is a technical term usually used in regression. If you gonna work in freelancing or any technical team or any industry, so you will usually hear this word that what is residual, what is, because residual is representing कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है, कि अगर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपकी रिग्रेशन बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है. All right. So this is the formula. E represents residual and actual value minus estimated value. अगर हम वापस यहाँ पर आए तो हम यहाँ देखते हैं that this is a regression equation and the distance between this is the residual, जिसको हम आगे जाके हम देखेंगे कि residual से क्या फर्क पड़ता है हमारी accuracy के ऊपर and more things like that. Today we are not gonna dive so much. Just हम एक simple model train करेंगे and then we will move on. All right. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो ड्रॉप करता जाए एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, बिकॉज आज की वर्कशॉप बहुत छोटी है. एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आई विल डिलीवर एवरी I will give every answer of every type of question. Okay. Where is linear regression used? All right. So as I already told you, that is used for any predicting like in finance and investment. Here is written that evaluating trends and sale estimates. I already told you about sale estimates, and trend is of course like अगर मैंने अपनी कोई वीडियो डाल दी है यूट्यूब के ऊपर एंड देयर आर 3 videos and 3 videos have some particular performance over the time. So now YouTube can predict like what will be the target reach of that video within 3 months, within 2 months, within 1 month. But YouTube models are so advanced that they know that this video is not gonna survive after 2 months. This video is not going to be watched after 1 month. They have some specific regression based models. We will see that later in these same workshops. All right, this is a simple linear regression algorithm. Okay, so as we see that earlier, y is equal to alpha plus beta x. This is the same equation, we are seeing it here, but this is like आगे पीछे कर दिया, alpha moves here and y moves here, so that doesn't make such a huge difference. Now what is beta? To make you understand that what is beta and how this model is calculating beta, if you want to know, so it is very essential for you that this is sigma. As you already know, there are multiple values of x on particular scale. This is representing the number of the values on x-axis. This is representing the particular value of x-axis on which this point is representing right now. For example, there will be multiple iterations from 1 to 10. So I is representing iterations. अब यहाँ पे I है, ये 1 के बाद 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, and so on. So xi minus x mean, bar is representing mean of the x, हम उसका mean निकालेंगे. yi minus y mean, ये भी वो yi है जिस particular value पे जो y की value थी जिस particular point पे, वो यहाँ पे वो value आएगी और यहाँ पे y mean आएगा. Same will go below as well. तो ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा, इस तरीके से वो कैलकुलेट होता है हमारा बीटा.
बीटा कैलकुलेट होने के बाद अल्फा कैलकुलेट करता है, एंड देन और फिर इसी तरीके से वायर प्रिडिक्शन बेस होने लग जाती है. इफ यू आर नॉट इन फोर्थ सेमेस्टर, इफ यू आर वर्किंग इन फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, तो आपको आपकी ने इसकी मैथ्स नहीं पढ़ी होगी इन प्रोबेबिलिटी स्टैक व्हिच वी स्टडी इन यूजुअली 4 semesters of university life. So if this is going over your head, so don't worry, you will understand this after some time, after some practice. So this is easy, this is not such hard, just you have to put your brain into this. Okay, so now we are diving into the code of linear regression. So these are the libraries we are going to import here. Import NumPy as NP, import pandas as PD, import matplotlib.pyplot as PLT, from sklearn.linear model, import linear regression, and so on. Okay, this doesn't, I don't think so. This needs, we don't need, okay, leave it here. All right. Why we are importing NumPy? Because machine learning model can only accept NumPy. Machine learning model के अंदर हम जब भी कोई डेटा हम पास करा रहे होते हैं डेटा शीट से, तो उसको हमें NumPy एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो मॉडल फिर से NumPy ही समझता है, चाहे फिर वो एक इमेज ही क्यों ना हो. अगर आप एक इमेज भी ट्रेन कर रहे हो, आप उस इमेज को एक न्यूमेरिकल डेटा के एरे में कन्वर्ट करते हो, एंड देन यू पास इट टू द मॉडल. Why we are using pandas here? We are using pandas here because we have to read our data set, or pandas is used for reading data set, do some modifications in it, do some cleaning, and so many things, and to view the data, to explore the data, uh, so on. Import matplotlib.pyplot as PLD is, as you already know, we have done this yesterday. Matplotlib is used for visualization. So yeah, of course, we're gonna visualize a data set before model and after model. That is why we are importing this library. Okay, from sklearn.linear model. So sklearn is of course scikit-learn. It's already installed in Colab. So you can either you work on Colab. If you are not working on Colab, so if you are working on Jupyter set, then you have to install this sklearn library. Just go over ahead to the sklearn documentation and see how you install it. But by the way, just write pip install sklearn. It will install entire package of sklearn. Okay, so for linear regression, we are just importing linear regression model from sklearn.linear model library. As you can see here, this is where we are importing linear regression ML model function. All right. So we are importing this function, okay? The which is going to by this we are going to train our model. From sklearn.metrics import mean squared error. Okay, we'll see that later. What is mean squared error? So we are importing this right now. We can import it later as well. So this is some metric calculations, and why we are importing it, we'll see that later after training the model. All right, going further ahead, and here we can see. Okay, so let me see that if I have connected my drive. To connect your drive, you simply have to press this button. For example, my drive is already connected, so I don't need to unmount it. If I unmount this, way will say, okay, revoke access to Google Drive for this notebook. I will say okay, and this will regenerate a runtime. Just for showing you, I am disconnecting my drive and will reconnect my drive. All right, it's initializing. Okay, Colab, what does Colab does? It just assign you a computer, a virtual computer at their own data center. That is why Colab is so fast. And if in future, when we will work on deep learning, we will have one more benefit, that we can change runtime type to GPU and TPU, which will increase our speed basically fast. But we don't need GPU in this, because if even if you use GPU, that not gonna make model fast, because it's not utilizing GPU, because we are not working on computer vision and anything else. All right, I'm again mounting my drive to show you how it mounts, connecting to my Google Drive. Yes, connect to Google Drive, and it will take some 3 to 4 seconds. Now it's being connected, I guess. Yeah, it's connected, and to my drive. I already know where I have put my data set into drive, so just I think it's loading my files. There are so many files I've already
full my entire data, and here I'm copying my path of the data files, data set, and I think it's the same URL, but just to show you, यहाँ पे मैंने अपना URL पेस्ट कर दिया, तो वही URL था ऑफ कोर्स. ओके, लेट्स सी. मैं स्टार्टिंग से इसको रन कर लेता हूँ बिकॉज हमने रन टाइम रीजनरेट किया है. Now we'll see your data. What's in our data? So dataset.head is used for seeing initial 5 rows of a dataset. अगर हम चाहें तो dataset.head के अंदर हम simply यहाँ पे अगर 15 डाल दें, so it's gonna show me 15 initial lines of my dataset. So now I can see these two features are not so far important for me. They don't have any particular correlation as compared to the head size and brain weight. There is particular correlation, and how to see if there is any correlation in head size and brain weight? We simply visualize the data. So what we'll do, what we are doing here in size variable, we are just importing the head size centimeter cube column of the particular data set. As you can see, the name of column is head size and in bracket centimeter cube. And same for the weight. In weight variable, we imported the particular column of data set brain. अगर हम अब इसको देखना चाहें तो क्या इसने वाकई इंपोर्ट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है टू जस्ट शो यू कि ये पूरा का पूरा कॉलम ये ले रहा है और इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं. यहाँ पे पूरा कभी भी नहीं दिखाएगा. अगर पूरा दिखाने लग गया तो देयर आर 236 यूनिक वैल्यूज. एंड यस, तो उसने आपको 4 तक दिखाया, डैश डाल के आपको 26 तक दिखा दिया, फर्स्ट 5 और लास्ट 5 के भाई ये डाटा इसमें आ गया. फिर उसने साइज प्रिंट करने के बाद वेट भी प्रिंट कर दिया आपका. Alright, so now we're going to visualize the data. Simply we'll write plt.scatter. As you already know, we'll write plt scatter here. हम यहाँ पे why won't we write bar chart? Why won't we make it histogram? Because histogram की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम दो रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, और दो रिलेशनशिप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर रिलेशनशिप हो. अगर वो लीनियर रिलेशनशिप होता तो हम यहाँ पे सिंपली प्लॉट लिख देते और उसका वो ग्राफ बना देता. एंड एज यू कैन सी इट्स लुकिंग लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी. जस्ट grab a pencil and draw some crazy lines, and well, exactly that's not the case. So that is why we write scatter here. And wait, and yeah, so now it's completely fine. We can see the correlation in a data. What is the what type of correlation? We can see that data is amazingly linear. It's not such good as we would expect, but it's linear. Its relationship is linear. When we are increasing x, the y is also being increased. There is not a scenario that if you are increasing x, the y is decreasing. So it's linear. In that case, it can also be happen that if you are increasing x, then y might be decreasing. That will all be that can also be a linear relationship. But here we can see it's the straight linear. There is no curve in this scatter plot. There are not mixing like cluster based. So and cluster have no labels. So this is of course supervised learning, and this is a regression problem. So yeah, going further. So now we have visualized the data set. So now it's our turn. Remember this pipeline. This pipeline is very important in regression scenario. Now we have to convert a data set into numpy arrays. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मशीन लर्निंग का मॉडल डायरेक्टली डेटा सेट इंपोर्ट नहीं करता. सो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू numpy arrays बिकॉज वो वही एक्सेप्ट करता है, वो वही न्यूमेरिकल एरे एक्सेप्ट करता है. So here we are writing x and y. X is the same size, the head size, and y is the brain weight for which we are taking weight. All right. So this function is used for converting any data frame into array or converting any list into array. Usually वो data frame जो होता है list चल रही होती है, लेकिन वो उसको as an array convert कर देता है. And अच्छा ये मैं ज़रा हटा देता हूँ to let me show you a difference. And wait, print x and print y.
to show you what type of changes is being occurred here, let me re all right. So if you see that we are having this type of data set, so ये हमारे पास एक एरे के अंदर मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन इसकी कोई अच्छी डायमेंशन नहीं है. वी हैव टू मेक इट इन अ सिंगल डायमेंशन, इन अ सिंगल इन अ लीनियर फॉर्मेट एरे, वन डायमेंशन एरे. तो उस वन डायमेंशन एरे बनाने के लिए हम डॉट रीशेप का फंक्शन यूज करते हैं और उसमें हम अपनी रेंज डाल देते हैं टू मेक इट वन डायमेंशन. If you ever in the future forget this pipeline, so don't worry, because even me sometimes need to watch the pipeline कि मैं कोई step miss तो नहीं कर रहा, और that's completely normal of course. All right. अब क्योंकि हम साइज और वेट की वैल्यू मॉडिफाई हो गई है तो हम नहीं, साइज वैल्यू वेट मॉडिफाई नहीं हुई है, सॉरी. ऑल राइट, सो नाउ वी विल सी दैट. Now you can see this array has been modified into a one dimension array. Now we are having one dimensional array by which is easy for machine learning model to input it and train on it. Otherwise machine learning model को आप confuse कर देते हैं, वो एक हफ्ते तक भी ट्रेन होता रहता है और आपको मशीन लर्निंग मॉडल रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते. यू कैन ट्राई इट एट होम एज वेल. अगर आ भी जाएंगे तो वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे आपके. Okay, now we have converted our data set into an array, so it's a time to train our machine learning model. Yeah, this is the, as I told you, ये वो time होता है model.fit जिसको के मशीन इंजीनियर समझता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. मॉडल डॉट फिट करने से मशीन लर्निंग इंजीनियर आप नहीं बन जाते. अभी इसके साथ जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक मॉडल डॉट फिट आने से पहले पहले आपने करनी होंगी. फॉर एग्जांपल पैरामीटर ट्यूनिंग, ग्रिड सर्च पैरामीटर ट्यूनिंग इज़ वेरी रिक्वायर्ड, जो कि आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे और वहाँ जाके आप क्लस्टरिंग में भी देखेंगे और बहुत सारी जगहों पर देखेंगे. और डीप लर्निंग के अंदर तो क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन जाता है. हम बहुत जल्द इंशाल्लाह डीप लर्निंग भी पढ़ेंगे इन्हीं वर्कशॉप्स के अंदर, बेसिक डीप लर्निंग. तो यहाँ पर हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर लेते हैं. यहाँ हमने मॉडल के अंदर ले लिया लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ था. वी इंपोर्टेड लीनियर रिग्रेशन इनटू मॉडल, defining linear regression function into model, and then we are implementing model.fit xy. Some people says me we can also, why we didn't write linear regression parenthesis dot fit. Of course we can write this, but we are writing to make it define into a function, so we don't need to write the entire linear regression etc etc etc, because with this model it will store some values in this model, and with this model, this variable with model, we're going to predict the y values y or given x values. All right, so we have predicted our we have trained our model, and now see what's the mean squared error. And all right, I think it's going to be heavy for you right now. I'll just leave it here. And has it run? I didn't see that. Yeah, all right. So first of all, what is R squared values representing? R squared representing the value of residuals, like how accurate our model is. So here you can see our model is currently not such accurate, और वो हो भी नहीं सकता था. Why? Because यहाँ पे कोई स्केलिंग नहीं होती है इस रिग्रेशन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े 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 रेजिडुअल्स थे. अब ये एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल है, ये क्या क्या भी करेगा. तो वो सब यही कर सकता था कि भाई अब मेरे पास इतना सा डिस्टेंस था, मैं उन दो आउटलायर्स के बीच में जितने बीच में से गुजर सकता हूँ विद इक्वल रेजिडुअल्स, वो उतना इक्वल गुजर गया. अब ये तो नहीं कर सकता कि भाई पहले मैं गया सदर, फिर मैं गया मरीज, फर्स्ट आई गो लंदन, देन टू अमेरिका, देन टू हियर एंड हियर. तो नो, ही इज पासिंग स्ट्रेट अराउंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. इट्स लाइक द सेम. तो ये हमारा रिग्रेशन का मॉडल था जो कि हो गया, ट्रेन हो गया, एंड इट्स सो ह्यूज. ऑलराइट, train हो गया. and what does R square value is representing? It's, you can assume it's like an accuracy, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इसमें कोई इवेल्युएशन नहीं होती है रिग्रेशन मॉडल के अंदर, तो इसमें हम इसको एक्यूरेसी नहीं बोलते हैं. जिस मॉडल में इवेल्युएशन होती है लाइक क्लासिफिकेशन, उसमें हम उसको एक्यूरेसी बोलते हैं.
Okay, what is mean squared error? Okay, for this we have imported math value, math library. Okay, math.square root.regression model MSE. We have also imported mean squared error function from the above. Okay, what is mean squared error? Mean squared error is basically the mean squared deviation of any estimator which measures the like एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द एरर. जो आपके एरर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनका वो स्क्वायर कर रहा होता है, उसी का मीन निकाल रहा होता है, और उसका जो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उस जो जिसको हम रेजिडुअल बोलते हैं उसको मजीद वो उसको उन तमाम तमाम रेजिडुअल्स को ऐड कर रहा होता है और तमाम रेजिडुअल्स को ऐड करने के बाद उनका मीन निकाल रहा होता है. अंडरस्टैंड दिस अगेन, लिसन दिस अगेन. तमाम आपके जितने भी रेजिडुअल्स होते हैं उनको स्क्वायर कर रहा होता है, उसको फिर ऐड कर रहा होता है और फिर उनका मीन निकाल रहा होता है. ये मीन स्क्वायर्ड एरर क्या कर रहा होता है इससे आपको तक खास मालूम तो नहीं होगा, लेकिन दिस इज द वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटिंग लॉस फंक्शन, एरर लॉस, कि आपका कितना लॉस हो रहा है इस मॉडल के दौरान. तो हमारा अच्छा खासा लॉस है. एज यू कैन सी 2367 जो है हमारा लॉस है. हम स्क्वायर क्यों करते हैं? वाई वी नीड टू मेक इट स्क्वायर? हम विदाउट स्क्वायर भी कर सकते थे. अगर हम स्क्वायर नहीं करते ना तो वैल्यूज बहुत कम आती हैं, लाइक 10, 11, 14. दैट इज व्हाई वी नीड टू स्क्वायर इट. स्क्वायर करने से ये होता है कि थोड़े थोड़े डिफरेंस से भी हमें मालूम हो रहा होता है कि नाउ आवर मॉडल इज इम्प्रूविंग और नॉट. दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग इट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल इफ वी स्क्वायर 3 into 3, 3 the square of 3 is 9 and the square of 4 is 16. So value is increased not by a single one or two, it's increased by a huge margin. That is why we need to square these mean errors. Alright, अगर ये आपके सर से गुजर रहा है so तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. Don't worry. When I learned from Andrew Nick, who is the real innovator of AI, so he is the professor at Stanford University as well. So he has very beautiful statement. If you are not able to understand it, so don't worry, because this happens with every person. Because this is why we say machine learning is the last invention and it's the great thing from which we make inventions and innovations. All right. So अब हमारा रिग्रेशन मॉडल तो बन चुका था, लेकिन हमने उसको अभी तक देखा नहीं कि किस तरह का बना है, तो हम उसको भी विजुलाइज कर लेंगे. मैं आपको यहाँ का कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर. We are making it again plt.scatter. यहाँ पे मैंने कलर भी पास करा दिया. So make a difference from the blue. I have passed here orange. X फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज बी एक्स. अगर कभी आप भूल जाएं तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हैं कि किस किस तरीके से किस ऑर्डर में आपने रखना है. कुछ ऑर्डर वाइज होती हैं, कुछ ऑर्डर वाइज नहीं होती, कुछ कीवर्ड वाइज होती हैं. लाइक दिस एक्स वाई. आई एम पासिंग द कलर. यहाँ पे हमने स्कैटर कर दिया. एक्स और वाई यहाँ पे स्कैटर हो रहा है, ये वही एक्स और वाई है जो हमारी वैल्यूज ऑलरेडी हैं हमारे डाटा सेट के अंदर. इसमें कोई खास फर्क नहीं है. फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क यहाँ आ रहा है कि हम दोबारा एक प्लॉट कर रहे हैं. हम उसी फिगर के ऊपर एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं. जैसे हमने पहले प्लॉट की थी तो बहुत क्रेजी लाइंस प्लॉट हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा आफ्टर ट्रेनिंग और रिग्रेशन मॉडल वी गोना हैव द स्ट्रेट लाइन, तो plt.plot के बाद model.predict हम जब करेंगे यहाँ पे तो हमारी x वैल्यूज आ गई. ऑलराइट, उस x वैल्यूज के बाद हमने लिख दिया model.predict x. तो अब x वैल्यूज में जितनी भी x वैल्यूज होंगी ना उसकी y वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शन बेस्ड होंगी. वो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करता जाएगा कि भाई इस x वैल्यू पे ये y वैल्यू आएगी, इस x वैल्यू पे ये y वैल्यू आएगी, इस x वैल्यू पे ये y वैल्यू आएगी, और वो लाइन से एक लीनियर इक्वेशन जैसी भी हो लीनियर इक्वेशन वो बन जाएगी. और ऑलराइट, एंड और वो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास. सो दिस इज बेसिकली y. ये एक y है, लेकिन एस्टिमेटेड y है जो हमने लर्न मॉडल से जनरेट किया है. ठीक है, मैंने इसका कलर ब्लैक डाल दिया, आप चाहे रेड डाल दें. doesn't bother to me and doesn't make any difference. ओके, टाइटल मैंने रिलेशन डाल दिया. ओके, लेबलिंग बिल्कुल बेहतरीन डाली है मैंने. पीरियड एक्स लेबल, हेड साइज एंड पीरियड डिवाइडेबल ब्रेन वेट. सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन. जितने भी स्कैटर प्लॉट्स थे उसके अंदर ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन हमारी तैयार हो गई है. अच्छा, अगर हम चाहें कि इसको मैनुअली प्रेडिक्ट करना चाहें तो क्या ये मैनुअली प्रेडिक्ट करेगा मेरे लिए? यस, इट्स कैन सिंपली. मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको. सिंपली मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन ऑफ द मॉडल लिख दिया है और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 2000. अच्छा, वैल्यू हमेशा जो है ना लिस्ट में दीजिएगा लाइक दिस. एक मिनट, why it's being in lag.
सॉरी लिस्ट क्या एरे में दीजिएगा, और ये हमेशा इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1400। ऑल राइट, सो इट्स गिविंग वैल्यू 694। अगर हम यहाँ पे 1400 तलाश करें तो इतफाक से ये बहुत छोटी वैल्यू ले ली मैंने, जो कि ग्राफ में बनी हुई नहीं है। इस वैल्यू का कोई वही था ही नहीं हमारा डेटा डेटा सेट। ऑल राइट, 400। अच्छा, 400 पे ही हमें वैल्यू दे रहा है 1379, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली टू 1380। तो अगर हम 400 पे ऊपर जाएं स्ट्रेट, सो दिस इज आवर पॉइंट, और ये अगर हम देखें स्ट्रेट तो ये ऑलमोस्ट 1380 के करीब ही जा रहा है। So yeah, we can predict this manually as well, and we have done this by linear regression visualization as well. So now our machine learning model is completely finished. देखा कितनी शॉर्ट वर्कशॉप थी। मेरा नहीं ख्याल, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। मैंने 10 मिनट की वर्कशॉप को 40 मिनट्स में एक्सटेंड किया है, एंड इट्स कम्प्लीटली सिंपल। सो अगर आपको कोई भी मज़ीद सवाल है इसके मुताबिक, सो मुझसे बिल्कुल ज़रूर अभी पूछ लें, और मैं देख भी लेता हूँ किसी के कोई इस रिगार्डिंग Q&A के अंदर कोई मैसेज आया हुआ हो, बिकॉज मेरे पास लाइव चैट नज़र नहीं आती। Yeah, some Mudassir asked me, more residual value means less efficient results. Yeah, of course, because when there is, if you are having more residuals in value, so it means that हमारा मॉडल इतनी अच्छी prediction दे ही नहीं सकता, of course, because residuals is basically R squared error. All right, what does if we have two data? Yeah, wait. Sir, ये left session wrong hack करता है. So what type of reshape of -1? Okay, what is work of reshape of -1 and 1? Let me get back to this. अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताऊँ, हमेशा जब भी कभी भी आप लोग कहीं पे फंस जाएं, इवन आफ्टर द वर्कशॉप, सो देयर इज नथिंग टू वरी, और आप मुझसे ही पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड पे, अदरवाइज वेयर इज दैट रिशेप का है। सिंपली अगर आप चाहें तो कभी भी किसी की भी डॉक्यूमेंटेशन ऐसे खोल लिया करें, और नमपाई रिशेप लिखेंगे ना, तो आपके पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन ऐसे आ जाएगी। इवन तो अगर आप वहाँ पे नहीं भी खोलते, और अगर आप सिंपली यहाँ पे रिशेप पे जाएं अगर, तो यूजुअली कोलैब खुद ही आपको दिखा देता है, जो कि अभी नहीं दिखा रहा, और इट डजंट मैटर। सो वी कैन सी कि रिशेप क्या कर रहा है। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। खैर, इसको आप ये जो भी है आप गूगल पर सर्च कर लें, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सारा मिल जाता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे रिशेप क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट ने सवाल किया यहाँ पे रिशेप क्या कर रहा है। जब पहले हमने देखा कि हमारे पास मल्टीपल एक सिंगल डायमेंशन एरे नहीं थी, हमारे पास एक तरह की लिस्ट टाइप एरे बन रही थी, और हमें सिंगल डायमेंशन एरे बन चाहिए, वो मल्टी डायमेंशन एरे थी, लाइक अ मैट्रिक्स, मल्टी डायमेंशन मैट्रिक्स। हमें सिंगल डायमेंशन मैट्रिक्स चाहिए था। तो यहाँ पर हम -1 पास करा रहे होते हैं, सॉरी वेट, यहाँ पे हम -1 इसलिए पास करा रहे होते हैं ताकि, क्योंकि हमें वन सिंगल डायमेंशन हमारे एरे चाहिए होती है। अगर हमें फॉर एग्जांपल एक ने पूछा कि अगर हमें 2 डायमेंशन एरे पास करानी हो, तो पहली बात तो ये कि 2 डायमेंशन एरे कोई मशीन लर्निंग मॉडल में जाता ही नहीं है। आपको हमेशा 1 डायमेंशन मशीन लर्निंग मॉडल में देना होता है, और अगर 2 डायमेंशन जाता है तो वो सब उन सेल में जाता है जब आपके पास वो 2 नहीं तो मल्टीपल डायमेंशन हो जाती हैं, और वो उस टाइम जाता है जब आपके पास इमेज प्रोसेसिंग आ जाए, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर दैट। All right, on which software I am performing this? So as I've already told, I am performing on Colab. Just simply navigate on the browser, write Colab. Colab is simple a Jupyter notebook, but it's being worked on Google Cloud Platform, and it's fast, so it won't consume our system as well. सो यहाँ पे मेरी मुख्तलिफ बनी हुई है, जो कि मैंने पहले से ही कुछ बना कर रखी हुई है, लेकिन इसमें रियल वर्ल्ड डेटा नहीं है, बस रियल वर्ल्ड डेटा मैं डालता हूँ रोज़ और आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। सो इफ़ यू जस्ट हैव टू import न्यू नोटबुक, एंड it will take just 10 seconds and it's gonna load. ओके, यहाँ पे आपने किसी कोई भी नाम दे दिया, लाइक हेलो वर्ल्ड, all right, make don't use space
screen. ऑलराइट ओके, यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे दिया. कोलैब काम कैसे करता है आज मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को. ओके, आई एम राइटिंग हियर हेलो वर्ल्ड. अगर मैं इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में सिंगल हैश लगाऊंगा सो माय टेक्स्ट इज गोइंग टू बी वेरी बिगर. इफ आई एम गोइंग टू यूज डबल हैश माय टेक्स्ट विल गेट बिट स्मॉलर. इफ आई एम गोइंग टू यूज थ्री हैश माय टेक्स्ट इज गोइंग टू बी more smaller. If I am going to use four hash, then it's going to make all more smaller. So these hash are basically used for headings, or you can simply select all and make it like this, then this, and then this. You can bold it, you can make it italic, and here you can write any code like print ml02 hero. Now it's allocating me any system on Google Cloud Platform at no cost. As you can see here, it's written Python 3 Compute Engine backend, and now it just printed for me. So how this, you can work on Colab. All right. I hope I have made you clear, and that does make that sentence. Select bar. All right. Please tell me. All right, Mudassir asked that why we predict X, not Y. So we are not predicting X. Okay, good question. We are basically predicting Y. जैसा कि मैंने आपको कहा कि X एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है. X एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है. अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा हो कि X इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और Y डिपेंडेंट वैल्यू होती है. हाउ? बिकॉज Y इज अ फंक्शन ऑफ X. X के ऊपर आप कोई भी वैल्यू दे दोगे, Y अपनी वैल्यू उसके मुताबिक बनाता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. तो यहाँ पे हम जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या फिर इधर देख लें, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के अंदर हम x डाल रहे हैं. ये बेसिकली पूरा का पूरा y के बराबर है. इसको इस तरीके से ले लिएगा, लाइक y इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट x. ठीक है, और ये याद रखिएगा ये एस्टिमेटेड y, ये एस्टिमेटेड y है. तो मैंने एक बार लगा दिया सिंपल. ये एस्टिमेटेड y, ये एक्चुअल y नहीं होगा, बिकॉज वी आर प्रिडिक्टिंग दिस y. दिस इज नॉट एन एक्चुअल y. ये बेसिकली हमारा ये मॉडल डॉट. नाउ व्हाट इज मॉडल डॉट प्रिडिक्ट x? बेसिकली अगर आपको मालूम हो तो y एफ एक्स जो सॉरी y इज इक्वल टू एफ एक्स. व्हाट इज एफ एक्स? फंक्शन ऑफ x. कोई भी इक्वेशन हो सकती है ये, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन है 2x प्लस 3, तो y इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन दैट इक्वेशन ऑफ x. तो यहाँ पे एक वो इक्वेशन है जो सब लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ही पता है, और वो इसके अंदर है, इस मॉडल के अंदर. तो हम यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं और यहाँ पे x लिखते हैं. तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग x के मुताबिक वो y की वैल्यू हमें एस्टिमेट करके बताया जाता है. All right, more questions like these. This was a very good question. Can you share the notebook file with us? And okay, yeah, I guess someone has already shared this notebook file in WhatsApp group. Right, let me see that. Yeah, a person named Rohit Labit has already shared this in WhatsApp group as well, and I hope this someone will share in Discord group as well. So don't worry, you can get, and you can just navigate to my GitHub account. My username is mhuzafadev, or I simply just copy the URL and paste in the chat. Don't worry. Everyone can access my chat on your live Q&A. It's being published, and yeah, it's not published. So yeah, all right, going further. सर एक बार फिर रिपीट कर दें. अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं क्या रिपीट करूं, ऐसे तो मुझे मालूम नहीं होगा. Please tell me use of R programming. If I'm not getting you wrong, so R programming is a different language. We are currently working on Python. They both are both language have same intentions. R programming ज़्यादातर लोग data science के लिए अंदर use कर रहे हैं, but Python has a vast when it comes to machine learning and data science. That is why I'm teaching in Python, and companies usually prefer Python language as well. बाकी अगर आप R programming करना चाहें, so I'm not going to teach you R programming, but the concept will be the same for R programming as well.
सब थोड़ा बहुत सिंटेक्स ही डिफरेंट है. But if you are referring me to that R, we see that earlier, so that R was residual, as I told you, R squared. So R squared जो हमारे पास errors आ रहे होते हैं, उनको तमाम errors को अगर हम square करके add कर दें और फिर उनका mean निकाल दें तो उसको हम mean squared error बोल रहे होते हैं. How would we know by looking at the data that regression technique would... Okay, how would we know by looking at the data that regression technique would be applied? A very good question by anonymous person. And ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैंने जैसे पहले मालूम बताया था, ये हमारा डाटा किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप के अंदर है और ये कैटेगोरिकल फॉर्मेट में नहीं है. इधर आ जाते हैं. ये डाटा जो है हमारा, ये कैटेगोरिकल फॉर्मेट में नहीं है. अगर हम ग्राफ में भी देखें यहाँ पे, तो ये दिस इज नॉट इन द कैटेगोरिकल फॉर्मेट. कैटेगोरिकल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर हैविंग अ सेपरेशन बिटवीन टू वैल्यूज. अब कैटेगोरिकल फॉर्मेट की वैल्यू किस तरह बनती है, जरा मैं आपको एक ग्लिम्स के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमारी बहुत बाद में स्टार्ट होगी. तो क्लासिफिकेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है. कोई सिंपल ग्राफ मुझे मिल जाए ना. हाँ, ये जैसे सिंपल एक ग्राफ बना हुआ है, बहुत कलरफुल है, लेकिन आपके लिए ये भी बहुत है टू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस. या ये ले लेते हैं. अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास अलग रिप्रेजेंट हो रही है और एक वैल्यू हमारे पास अलग रिप्रेजेंट हो रही है. लेकिन क्लासिफाई करने से पहले हमें डेटा को देख के कैसे मालूम होगा कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रही है या क्लासिफिकेशन नहीं हो रही? उसकी सिंपल रीज़न ये सिंपल तरीका ये होता है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजुअली इस सिनेरियो में लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई कर देते हैं, और देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज वेल लोग पीपल अप्लाई random forest, and there are multiple scenarios. क्लासिफिकेशन में हमारे पास 1 या 0 का कंसेप्ट होता है, 1 या 0. लेकिन जब रिग्रेशन में हमारे पास एक कंटिन्यूस डाटा होता है. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी कंटिन्यूस डाटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो मेजर कॉलम्स हैं जो कि यूजुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चल रहे होते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में पढ़ेंगे. लॉजिस्टिक रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, जिसमें हम रिग्रेशन अप्लाई नहीं करते, कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और उन मल्टीपल कॉलम्स को आपको आपने एक सेम ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है. नाउ यू हैव टू क्लासिफाई इन द फिगर कि कौन सा डाटा किसकी पार्टी का है और कौन सा डाटा किसकी पार्टी का है. फॉर एग्जांपल आई एज्यूम कि मेरे पास तकरीबन मेरे पास पार्टी है, उसमें 900 बंदों को मैंने इनवाइट किया है. 900 पीपल, 900 people came into my house, and now I have to classify how many of them are male and how many of them are female. What I'm doing कि मैं उनको सिंपली एक पिक्चर ले रहा हूँ और कंप्यूटर विजन मॉडल उसको डिटेक्ट करके मालूम कर रहा है कि इधर दे आर फीमेल और इधर दे आर और मेल. ठीक है, तो मेल और फीमेल को पर्टिकुलरली वो डिवाइड कर रहा है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास मेल और फीमेल की एक लिस्ट तैयार कर दे. अब हो सकता है उनको रेफरेंस के लिए मैं क्वांटिटी ले जाऊं, या रेफरेंस के लिए मैं एज ले जाऊं कि इस एज में कितने लोग मेल के आ रहे हैं या इस एज में कितने लोग फीमेल के आ रहे हैं. या मैं ये ले सकता हूं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो ये काम, फॉर एग्जांपल हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कितने लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स खरीदे हैं, कितने लोगों ने लैपटॉप खरीदे हैं और किस किस टाइमिंग में खरीदे हैं. या हम ये कर सकते हैं कि कौन लोग किस टाइमिंग में क्या खरीदने आ रहे हैं. तो इस तरह की जो डिफ्रेंसिएशन होती है जिसके लिए हम क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, उस सिनेरियो में रिग्रेशन यूज़ नहीं होती. रिग्रेशन में क्या है, रिग्रेशन में तो सिंपल एक एक्स है और सिंपल एक वाई है और दोनों के दोनों कंटिन्यूस डाटा है. That is why we are using regression here. Okay, today I am getting very good questions. If there are more good questions, I would love to answer those questions as well. Okay, sir, in first workshop you told me that I will show friend's project which is consuming ML, and then you said that he is offline. एक्चुअली वो उसका प्रोजेक्ट वो मेरे साथ आ नहीं सका, ही इज़ टू बिजी. अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं कल उसको लाइव भी ले आऊँगा और कल वो मेरे साथ क्लाउड सीखो के इवेंट में भी होंगे, बिकॉज ही इज़ एंटायरली बिजी पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो आउट ऑफ 24 आवर्स 20 आवर्स तो काम कर रहे होते हैं. Okay, simply navigate to this website and you can see this is check now. And अभी ये बंद है, इसके अंदर वर्किंग जारी है. कल मैं आपको उनको लेकर आऊँगा और इसकी लाइव परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा कि हाउ
कैन वी प्रेडिक्ट कफ यूजिंग कफ के थ्रू हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई पेशेंट कोविड है नॉन कोविड है। यूजुअली क्लाउड क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पर्सनल प्रोजेक्ट है डाउन हो जाता है। वो कल मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कराची में रहता है, सो आई रिकमेंड यू कि कल क्लाउड सीखो के इवेंट पे आके मुझसे ज़रूर मिलें। वी गोना डिस्कस सो मेनी ग्रेट थिंग्स विद यू। We will use gradient descent and cross entropy in future lessons. Yeah, of course, we'll cover all these tiny topics in future, inshallah. You ask the same question so many times. सर आपने मॉडल की एक्यूरेसी नहीं निकाली। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि रिग्रेशन में एक्यूरेसी नहीं होती, रिग्रेशन में आर स्क्वायर्ड एरर होता है। आप इसको एक एक्यूरेसी एज्यूम कर सकते हैं, लाइक अगर आप इसको एक्यूरेसी एज्यूम करें तो हमारा मॉडल 63% एक्यूरेट काम कर रहा है। और वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमारे डाटा के अंदर रेजिडुअल्स बहुत ज़्यादा थे और ये मॉडल कोई इतना हाईली एफिशिएंट मॉडल भी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न। वैसे यूजुअली एक्यूरेसी हमेशा तब काम आती है जब हम लोग किसी मॉडल को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। और इवेल्युएट कब कर रहे होते हैं हम? जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं या फिर देयर आर मोर थिंग्स दूसरे मॉडल्स में। रिग्रेशन के अंदर हम लोग कभी भी इवेल्युएशन नहीं कर रहे होते। How do we know the data is enough? As we say, the more data we have, the more trained model we get. या अगर यूजुअली कभी कभी ये होता है कि अगर आपका डाटा बहुत कम हो तो आपका मॉडल उसको मेमोराइज कर लेता है और आपका मॉडल बायस होने लग जाता है। मतलब बायस से मुराद कि उसको जब मेमोराइज कर लेगा तो आप जो भी वैल्यू उसको दे रहे हो तो वो आपको रट्टी रटाई वैल्यू उसका जवाब दे रहा है। लेकिन आप जब जनरलाइज सोल्यूशन की बात करते हो, आप उसको जनरलाइज एक्स इनपुट दे रहे हो, तो वो आपको कभी भी राइट प्रेडिक्शन नहीं दे रहा होता। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है हमें डेटा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और ये किस तरह हमें मालूम लगता है? यूजुअली मशीन लर्निंग के सिनेरियो में 100 सैंपल्स ही बहुत होते हैं, 200 सैंपल्स ही बहुत होते हैं, 300 सैंपल्स ही बहुत होते हैं। लेकिन डीप लर्निंग में ये सिनेरियो नहीं होता। जब आपके सैंपल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं, लाइक 3000, 4000, 5000, मिलियंस ऑफ डेटा सैंपल्स, तब आपको डीप लर्निंग में मूव करना पड़ता है, बिकॉज मशीन लर्निंग विल गेट इनएफिशिएंट इन दोस सिनेरियोज एंड विल गोना टेक डिकेड इन ट्रेनिंग। तो मशीन लर्निंग के लिए इतने अमाउंट ऑफ सैंपल्स भी बहुत होते हैं। इवन तो अगर आप रिग्रेशन खुद से बनाएं, खुद से एक्स की वैल्यू बनाएं, खुद से वाई की वैल्यू बनाएं और उसमें जस्ट 10 वैल्यूज डाल दें एक्स की और वाई की, मशीन लर्निंग के लिए वो भी बहुत है। लेकिन अगर अब आप 2 या 3 वैल्यूज डाल रहे हैं मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर, तो वो तो बहुत ही कम हो जाएगा ना। अब उसके अंदर तो ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती। ये यूजुअली हम इन प्रोडक्शन क्या होता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इन प्रोडक्शन हम ये करते हैं कि हम एक ही प्रॉब्लम के ऊपर, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के ऊपर स्केलिंग करते हैं, डेटा को साफ करते हैं, उसके बाद हम उस पर तमाम मॉडल्स अप्लाई कर देते हैं। जो मॉडल सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आ रहा होता है उसके मज़ीद ट्यूनिंग करते हैं और वो मॉडल हमारे लिए फिर परफेक्ट काम कर रहा है, तो फिर हम उसी मॉडल को फ्यूचर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर पर्टिकुलर डाटा सेट। ऑलराइट सर, ड्राइव से डाटा लोड करना एक बार फिर बता दें। ऑलराइट, देखें सिंपली आप यहाँ पे गए, यहाँ क्लिक करा, सॉरी यहाँ क्लिक करा फोल्डर पे, यहाँ पे डाटा मैंने अपनी ड्राइव अनमाउंट की हुई थी, यहाँ से अनमाउंट हो जाती है और अभी ये रिकनेक्ट करेगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ इट विल आई गोना कनेक्ट माई ड्राइव अगेन। और यहाँ से मैं अपनी ड्राइव दोबारा से रिकनेक्ट कर दूंगा। इट विल कनेक्ट द सेम ड्राइव जो आपकी जिस आईडी से आप कोलैब यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी आईडी से अपने दोस्त की ड्राइव को कर लूँ, माउंट कर लूँ। सो नाउ इट माई ड्राइव हैज़ बीन कनेक्टेड। अब यहाँ से मैं अपना डेटा सेट मेरे ड्राइव पे जितने भी फोल्डर्स होंगे वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल, मेरी ड्राइव पूरी भरी हुई है, तो सब यहाँ पे आप उसका पाथ कॉपी करके, पाथ भी कॉपी करना दोबारा बता देता हूँ कि पाथ कैसे कॉपी होता है। और यहाँ पे हम गए, सॉरी यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ से कॉपी पाथ कर लिया एंड नाउ अब हमारे पास उस डेटा सेट का डायरेक्ट हमारे पास फाइल कॉपी हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं हमारे पास एमरेस टेस्ट की, कैलिफोर्निया हाउसिंग टेस्ट की, जो कोलैब आपको ऐसे ही दे देता है कि आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करें। तो ये हमारे पास इसने टेस्ट और ट्रेन की अलग अलग फाइल बना रखी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम यूजुअली स्प्लिट करते हैं डाटा को, जो कि आज हमने नहीं करा, वो हम फ्यूचर में करेंगे। आज की पाइपलाइन मैंने बहुत सिंपल लिखी है, आज इसको बिल्कुल पी जाएं, बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएं। कल से इसी चीज़ के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस आएंगी, मैं आहिस्ता से लेके चलूँगा
और 30 दिन में आप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन चुके होंगे इंशाल्लाह। How can I download these GitHub lectures? Downloading lectures from GitHub is not so hard. Just simply navigate here. All right. आप सिंपली अच्छा यहाँ पे अगर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप क्लोन कर लें। अगर क्लोन का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो मेरी अपनी आईडी है, तो इसलिए यहाँ पे शायद डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हो। राइट, तो यहाँ पे आ रहा है कोड, ये पूरी की पूरा फोल्डर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे डाउनलोड जिप करें और ये आपको 2 सेकंड के अंदर पूरा डाउनलोड भी हो जाएगा। ऑल राइट, और कुछ? Sir, can you explain the equation? Okay, where is it working and how is it working in the model? या अब इक्वेशन हमें नहीं मालूम होती कि मॉडल में कौन सी इक्वेशन है, मॉडल ने कौन सी इक्वेशन अपने अंदर ली है, लेकिन मॉडल के पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। वो जैसे हमारे पास ये डाटा सेट था, उसने इस डाटा सेट के ऊपर ट्रेन होते होते मतलब पहले उसने इक्वेशन बनाई कि डाटा को रीड करते हुए कि पहले ये इक्वेशन बनेगी, फिर उसने कहा नहीं ये इक्वेशन बनेगी, फिर उसने कहा नहीं ये इक्वेशन बनेगी। तो एक परफेक्ट एंगल बनता है जिसकी हर लाइन की एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो वो उसकी इक्वेशन अपने अंदर स्टोर कर लेता है एंड दैट इक्वेशन कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। वो इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोड ही इससे ट्रिपल होगा। रिग्रेशन का, बाकियों का नहीं कह रहा मैं, क्लासिफिकेशन का कोड मैंने कभी निकाला नहीं है, इक्वेशन कभी नहीं निकाली, लेकिन हम रिग्रेशन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो उन्हीं के लिए आसान है जिन्होंने 4th सेमेस्टर से आगे के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो 4th सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं एंड देयर इज समथिंग हार्डर देन दिस सिनेरियो। वो फिर कोर मैथमेटिक्स, वो फिर सारे यही वाले फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे टू नो द इक्वेशन कि इक्वेशन क्या है। तो वो इक्वेशन इसके अंदर स्टोर होती है और अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा होता है। एज आई टोल्ड यू कि y always is depending on any function of x. All right, more questions. Can this model be deployed in website? Yeah, of course. ये अब रिलीफ भी बंदा ना, तो मैं आप लोगों को दिखाता कि हाउ कैन वी डिप्लॉय मॉडल्स इन आवर वेबसाइट। कल मैं आपको एक दो चलो मॉडल, कल मैं आप लोगों के लिए कुछ मॉडल्स लेकर आऊँगा। कल दो वेब से लेके आऊँगा लाजमी नेट से ढूंढकर, या मैं खुद डिप्लॉय कर दूंगा। और इंशाल्लाह एट द एंड हम इंशाल्लाह डिप्लॉयमेंट सीखेंगे भी कि हाउ कैन वी डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल इन वेब। अभी हम जिस मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, इसके बाद इसका एक पैकेज फाइल बनती है और इस पैकेज फाइल से हम पाइथन में कोड कर रहे होते हैं। फिर इसकी एक एपीआई की बनती है, यूजुअली डू इन फ्लास्क, और फिर हम उसको कहीं पे भी अपनी वेब में यूज कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट हार्ड। Where is that cloud Sikho event in Karachi? Okay, I will tell you just in 1 minute. Cloud Sikho event. All right. All right. How to find which data set is good? Data set कभी भी गुड नहीं मिलता आपको, कभी कभी प्री प्रोसेस मिल जाता है, कभी भी गुड नहीं मिलता आपको, रॉ मिलता है आपको। जो हमने सेकंड वर्कशॉप में टेक्निक यूज़ करी थी, उन टेक्निक्स के मुताबिक हमें उसको प्री प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अगर डाटा सेट बहुत ज़्यादा ही कोई रॉ में आ रहा हो तो फिर हमें वो डाटा सेट यूज़ नहीं करना पड़ता, हमें वो डाटा सेट यूज़ करना पड़ता है जिसमें वाकई ही एक्यूरेसी अच्छी आ रही हो। How to identify the values are discrete and continuous. In second workshop, I have already told कि आपके पास जब categorical formats होते हैं, for example, like एक x axis पे हमारे पास इस तरह की values हैं, like पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, सऊदी एंड तुर्की, there are multiple countries, all right? और इनकी हमने population mark कर दी on y axis. So these are discrete values. What are continuous values? Continuous values are के यहाँ पे हमारे पास दो स्केल्स हैं, लाइक एक्स एंड वाई। जैसे हेड ब्रेन या ब्रेन वेट, हेड साइज और ब्रेन वेट ले रहे हैं आप, तो कितने हेड साइज में क्या ब्रेन वेट आ रहा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी कंटिन्यूस है और वाई एक्सिस पे तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूस रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा सेट। Is there any benchmark for identifying R square, mean square? Okay,
जितना कम आपका आर स्क्वायर तो चला जाएगा, मतलब जितना अच्छा आपका आर स्क्वायर होगा मतलब 0.8 0.9, और जितना कम आपका मीन स्क्वायर एरर होता चला जाएगा उतना अच्छा आपका मॉडल काम कर रहा है. इट्स सिंपल एज दैट. ओके, फर्दर इस ट्यूनिंग के इसको मजीद एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आप लोगों को आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको कल पढ़ाऊंगा. आप जस्ट सिंपल 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 डेटा सेट उठाएं कैगल से, प्री प्रोसेस डेटा सेट उठाएं, या प्री प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो तो प्री प्रोसेसिंग करके उठा लें और उसके ऊपर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करें. I am using iRetinal images to train and test my model. I guess 100 to 200 images will be best for iRetinal images to being trained. लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल से क्यों करो, इसको डीप लर्निंग मॉडल से करो ज़्यादा अच्छा होगा. एंड या इट विल बी ग्रेट. Okay, how can I download these GitHub lectures? How can I download these GitHub lectures? I have already answered that. Okay, more questions, please. Please share about, okay, uh, how to please share about AutoML usage too. Okay, मैं वैसे बताना चाह रहा था लेकिन मैं ये बताऊंगा कि AutoML पे भी हमारा एक अपकमिंग वर्कशॉप है, उस पर ज़्यादा पढ़ लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा. How to identify the values are discrete and continuous. I've already told you. How to classify that are particular as we go to know. Please share. Okay, since regression have many more models like excluding boost and etc. How so are we going to have classes for them too? Yeah, मैं आप लोगों से आज फिर आप लोगों के पास ईमेल्स आई होंगी, आपके पास 30 डेज का पूरा पैकेज आया हुआ होगा कि हम किस दिन क्या पढ़ेंगे. हो सकता है थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको और अच्छा बना दूं मैं वक्त के साथ साथ, लेकिन आप लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, ये छोटी मोटी चीज़ें सब पढ़ लोगे आप, सो डोंट टेक टेंशन. हाउ डू यू डिफाइन ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट? कल हम करेंगे इंशाल्लाह वो टेस्ट सेट को, कल या परसों हम करेंगे कि टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट को डिफरेंटली डिवाइड करेंगे. ओके, हाउ कैन वी, ओके ऑलरेडी आंसर्ड. हाउ टू इंश्योर द मॉडल इज नॉट ओवरफिटिंग. अच्छा, ओवरफिटिंग का इसमें कोई सिनेरियो इस तरह होता है कि आपके पास वैल्यूज एक पर्टिकुलर, अब रिग्रेशन के अंदर ये है कि रिग्रेशन अब 3 में आप इक्वेशन नहीं बना सकते. 3 4 प्लॉट पे थोड़ी आपको मालूम होगा कि किसने इक्वेशन, अगर आपके पास 10 वैल्यूज भी हैं सो यू कैन सी पर्टिकुलर रिलेशनशिप इन दैट ग्राफ एंड यू कैन सी हाउ रिग्रेशन इज परफॉर्मिंग इन सच वैल्यूज. लेकिन जब आप बात करते हो कि ओवरफिटिंग की, तो ओवरफिटिंग तो इस तरह की मालूम होगी, ओवरफिटिंग इसमें होती नहीं है अव्वल तो, लेकिन अगर आप बात करते हो कि भाई मॉडल बायस तो नहीं हो गया, उसने मेमोराइज तो नहीं कर ली वैल्यूज, तो आप दूर की रेंज का मॉडल निकाल कर देख लो कि आया कि उसको प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ओवरफिटिंग यूजुअली तभी मालूम होता है जब हम उसको टेस्ट और ट्रेन सेट में मालूम स्प्लिट कर लेते हैं, और यूजुअली क्लासिफिकेशन में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं. ओके, जज़ाकल्लाह सर. इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? आई वुड लव टू आंसर. मैं एक दफ़ा फिर देख लेता हूँ कि किसी ने कोई और क्वेश्चन ना किया हो. ओके, क्लाउड सीको का इवेंट का मैंने नहीं बताया अभी तक. क्लाउड सीको का इवेंट बता देता हूँ, सॉरी फॉर दैट. क्लाउड सीको इवेंट सिंपली अगर आप यहाँ जाएं तो क्लाउड सीको इवेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है. आप जाइएगा और bit.ly मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ उसकी. राइट, सो यहाँ पे आप रजिस्टर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है. ये वो साहब हैं जो आपको मशीन लर्निंग की अपनी वेब ऐप दिखाएंगे, जिन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किया था. तो ये बहुत बिजी हैं लेकिन कल ये आ रहे हैं, इनसे मिलने का मौका आप ज़रूर हासिल करें और सी समथिंग अमेजिंग बाय हिम, लिसन. ये आपको वर्कशॉप्स करवाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, सम बेसिक वर्कशॉप्स. तो ये हमारा एजेंडा है, 12:30 पे हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी एंड वी गोना ऐड अराउंड 3 PM. तो इवेंट हमारा 1 से 3 के दरमियान है, लेकिन 12:30 पे रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इवेंट. तो मैं चाहूँगा कि जो पहले आया वो पहले पाएगा. ये हम एपटेक के साथ मिलकर करा रहे हैं और ये हो रहा है एपटेक शार फैसल सेंटर पे. तो जो आए वो 12 12:15 12:30 तक लाजमी पहुँच जाए ताकि जगह अपनी मिल ले और अपनी सीट रिजर्व कर ले. क्योंकि 4 5 स्टूडेंट्स तो मेरे पे साथ के होंगे, मेरे कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, कुछ वो होंगे, बाकी आप सब लोग होंगे. जो आए पहले पाए. एंड या दैट्स ऑल. इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ फॉर नॉलेज, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. फ़ायदा इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है.
बिकॉज रजिस्ट्रेशन करने पे 15,000 1500 2000 रजिस्ट्रेशन आ जाती हैं, और फिर हमें क्या पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लोग तो तफरीयों के अंदर भी रजिस्टर कर लेते हैं। क्लाउड सीखो। राइट, मैंने आपको ये फॉरवर्ड कर दिया है लिंक, चैट में पब्लिश कर दिया है। आई होप इट्स बीइंग पब्लिश्ड। ओके, अगर अब मज़ीद डिटेल्स मालूम करनी हो तो प्लीज़ इस चैनल कह रहा हूँ वेबसाइट पे जाएं, और यहाँ पे आप जब ये लिंक खोलेंगे ना तो सर सही इंडस्ट्री of इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दिएगा, बिकॉज दीज आर आवर प्राउड पार्टनर्स जो कि ये सारे इवेंट्स कराने में हमारी सर अंजाम दे रहे हैं। सो ये हमारे इवेंट्स हैं, सारे पास्ट इवेंट्स हैं, ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स हैं, एंड सिंपली यू हैव टू जॉइन दिस कम्युनिटी। यहाँ पे मैंने लीव कर रखा है, आप सिंपली ऐसे आपको दिखा देता हूँ दैट हाउ यू कैन ज्वाइन इट। सिंपली क्लिक ऑन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर देंगे ताकि मैं आपको यहाँ से न्यूज़ लेटर सेंड कर सकूँ। मैं सारे एनालिटिक्स देख सकता हूँ कितने बंदे आए कितने बंदे नहीं आए, और मुझे सब कुछ इससे मालूम हो सकता है। मुझे आपको बस सारी डिटेल्स मालूम नहीं होती, लेकिन आपके नाम मुझे पता चल जाते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो उस तरीके से हम सारे आप लोगों को सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर टोटल 1729 अटेंडीज जिन्होंने रजिस्टर किया, लेकिन आए हैं 1528। सो आई कैन नो एवरी सिंगल थिंग। सो ऑल राइट, more questions please, otherwise I'm gonna end this class. Sir, what is the registration fee? Always remember, our registrations is always free. Always remember that हमारे रजिस्ट्रेशन की कभी कोई फीस नहीं होती है। अगर फीस कभी हुई तो बहुत रेयर सिनेरियो में, कि जब हम आपको कुछ हार्डवेयर बेस्ड प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम कभी आईओटी की वर्कशॉप करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर फिजिकली हम आईओटी वर्कशॉप करा रहे हैं, ड्रोन बनाना या जहाज़ बनाना जो उसमें अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, तो शायद उसके लिए हम ऑपरेशन कॉस्ट चार्ज करें। वो भी ऑप्शनल होगा कि आप खुद खरीद लें या हमको बोल दें हम आपको खरीद के दे देंगे। दैट्स ऑल ऑन यू। टीचिंग की हमारी कोई फीस नहीं होती। बिगिनर्स इन एमएल ये वर्कशॉप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अपने आप को कभी भी बिगिनर मत समझें। जो भी आपके पास पढ़ने को है वो पढ़ने बैठना है, बिकॉज आई डू द सेम थिंग। The project of cloud computing he has made, yeah, it's a combination of cloud computing, web development and machine learning as well. Machine learning is a major thing. Cloud computing में तो सब machine learning deploy किया है उन्होंने। ओके, इमेज प्रोसेसिंग का टच है इस वर्कशॉप में, या कम ऑन, और फिर देखना किस किस चीज़ों का टच है अगर आप उसकी क्लाउड सीखो की बात कर रहे हैं। बाकी इन दिस सिनेरियो आई डोंट नो अबाउट इमेज प्रोसेसिंग, लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट। लेकिन डीप लर्निंग में तो इमेज प्रोसेसिंग क्या पूरी की पूरी कंप्यूटर विजन सेल्फ ड्राइविंग कार बनवाएंगे आपसे इंशाल्लाह। सो हाउ वी नो दैट व्हेन टू यूज फिट मेथड और व्हेन इट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म तब यूज़ करते हैं जब हम डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे होते हैं। फिट हमेशा तब यूज़ होता है जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह रिमेंबर कर लीजिएगा। इज दैट ओपन सोर्स? व्हाट इज ओपन सोर्स? किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? अगर तो क्लाउड सीखो के बारे में, अच्छा नहीं, अगर तो आप प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे लीव मी गेस, सो नो दैट्स नॉट ओपन सोर्स, आई डोंट थिंक सो। No, Cloud Seeker is not available to online tomorrow. It's on-site event. Why did you consider head size only when why not other features? हमारे पास दो ही फीचर्स थे। ओके, हमारे पास दो ही फीचर्स थे, और एक था हेड साइज और एक था ब्रेन वेट। अगर हम जेंडर और एज को ले लेते हैं तो वो हमारे फीचर्स नहीं खिलाएंगे, बिकॉज दीज आर द सेम डिस्क्रीट वैल्यूज, और ये जो सामने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब हम चाहें तो दोनों को ले सकते हैं, इसको भी एक्स ले सकते हैं, इसको भी एक्स ले सकते हैं कि भाई कितने ब्रेन वेट पे कितना हेड साइज होता है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा वियर्ड लुक देगा। हम यूजुअली यही प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इतना साइज का कितना वेट हो सकता है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगर इसका ये वेट है तो कितना साइज होगा, लेकिन अगर आपको ये प्रिडिक्ट भी करना है तो ये भी हो जाएगा। इसमें भी कोई 30 मार खान काम नहीं है, बस आपको एक्स और वाई की वैल्यूज शिफ्ट करनी है। दैट्स द क्वालिटी ऑफ रिग्रेशन। कैन वी कंसिडर मोर देन 1x? या एब्सोल्युटली। कल की वर्कशॉप हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की है और उसमें हम मोर देन 1x लेंगे इंशाल्लाह। कैन वी अटेंड क्लाउड सीखो लाइव? आई डोंट थिंक सो। लाइव स्ट्रीमिंग मैंने नहीं रखी है अभी, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट फिजिकल इवेंट। आई एम ट्राइंग टू मूव दिस इवेंट्स इनटू फिजिकल एज वेल,
दोनों पैरेलल लेके चलूँगा। तो कल हमारी बिगिनिंग है फर्स्ट फिजिकल इवेंट ऑफ 2020। सो इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर इंटायरली फ्री और आप आना चाहते हो, आपकी कोई कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एमएल वर्कशॉप्स या क्लाउड सी को पढ़ना चाहते, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना चाहते हो, थोड़ी बहुत बेसिक लेना चाहते हो, सो प्लीज़ कम टुमारो, काइंडली कम टुमारो। और लेकिन बट ऑन टाइम, आफ्टर टाइम वी आर सॉरी फॉर दैट। Can you please share the recording of the event? Yeah, I can consider this suggestion. मैं इस रिक्वेस्ट को कंसिडर ज़रूर करूँगा और क्लाउड्स को इवेंट के अंदर रिकॉर्डिंग का ज़रूर बोलूँगा लोगों को। Okay, any further questions or I should go? Can we consider? Okay, same question. All right, I guess I have answered every single question in this workshop. Workshop बहुत छोटी थी, बहुत आसान थी और अब सब कह रहे हैं कि no, we don't need more questions. So all right, thank you. All right, जाने से पहले मैं कहूँगा कि भाई Discord मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसकी रीज़न ये बिकॉज Discord पे मैं सारे आंसर्स कर सकता हूँ, WhatsApp पे मैं आंसर्स नहीं कर सकता। It's obvious कि how can I deal every single thing in multiple WhatsApp groups. मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। I don't have a time to sleep, so how can I have a time to communicate with you guys? So Discord join करें and then I can communicate and my colleagues as well can communicate with you. Okay, Allah Hafiz, bye bye.